Hello everyone. In this lecture, we will discuss solidification curves of pure metals and alloys. This is part of the material technology. In this lecture, we will discuss equilibrium diagram, phase diagram, concept of solidification of pure metals and alloy, and last, lever arm rules. Equilibrium diagram. What is equilibrium diagram? Equilibrium refers to the state of balance which exists. State of balance means two consecutive states are almost similar. We cannot differentiate by some measurable parameter, or which tends to be attained between the phases in the structure of an alloy after a physical or chemical change has taken place. Equilibrium diagram is prepared. Suppose we are varying temperature and time, and changes in phase or states will be observed. Suppose process is going very slow, so we can not differentiate change in two consecutive states or changes. Suppose these are the number of instants we are changing, then negligible change or without change instance will be changed from 1 to 2. That is possible only if we allow from change from one instance to second at very small amount. Changes will be allowed after long time, or long time is provided, enough time is provided to change, and very small changes will be allowed, so we can say the phase condition at 1 and 2 will be similar. So equilibrium diagram is generally very slow cooling curves or slow heating curves can be considered as a equilibrium diagram. Characteristic of the phase do not change between two instances. So it is very slow process. If we allow a lot of time, then this is possible. Phase diagram. Phase diagram has a temperature as its ordinate and composition as abscissa. This is ordinate and this is abscissa. Here percentage composition, and here temperature will change, and the change of these two parameters will be observed and marked here. That will indicate the change in phase or physical state of the substance. Physical state of substance changes if we are heating or cooling. So phase diagram, we can say equilibrium diagram can indicate phase diagram. Here we will observe changes in phase. Maybe suppose after some heating it will start melting, then phase change may be observed, or phase change can be observed after melting. So this is phase changing process. That's why we can say it is phase diagram. Otherwise it is very slow process, and we can say also equilibrium diagram of heating of substance. So this is only difference. Here our requirement is observation of change of phase, at which temperature and composition. This is a phase diagram or heating curve prepared for some material.
Here temperature is taken on y-axis and time is taken at x-axis. Some arbitrary material is selected and we have started heating. This is room temperature. At room temperature we have started heating. After heating, material will change or expand because it is absorbing heat energy and the kinetic energy of the atom will be changed. So metal will expand, but its temperature continuously increasing. By heating, if we apply continuous heat, then its temperature will be increased up to point B. And this is sensible heating. Sensible heating. Why sensible heating? Because we can sense the temperature rise. Here some dimension will be changed. Means metal will be expand. At point B, further heating, we can find the first indication of melting. Here melting will be start at point B. And point B to C, melting process will take place. Here latent heat of melting will be absorbed. Latent heat is heat absorbed by substance or metal, that is heat supply at constant temperature. That's why it is known as latent heat of melting. Suppose this is temperature T1. Here temperature remain constant throughout melting. At B melting started and at C will be end. So here temperature remain constant. That's why this is horizontal line. Then further heating from C to or any temperature which we have required. Suppose this is temperature D and we are trying to investigate temperature up to some value, suppose 1400 degrees Celsius. So we will heat up to 1400. At that time metal also heat, and here this is also a sensible heat will be absorbed. So you can sense the temperature of the metal. Here metal remain liquid from C to D, it will be not changed. If you heat further above D, then evaporation maybe takes place, but this is not required to study in material science. So here temperature rise and metal remain in liquid state. Here also metal will be expand. Here solid expand, but the gap between atom will be near to similar, not change much more. But here liquid metal, so atom to atom distance will be rise. Atoms not remain in contact and not making atomic bonding. Here some space will be created due to melting, and that's why the volume of the liquid will be increased. Liquid metals volume will be increased. Here some space will be available in liquid. If we will further heat, then this distance is more increased. And here all atom traveling to random direction. That means all atoms have kinetic energy, and that energy achieved due to heat energy which we have supplied. So here in liquid metal, all atom traveling to random direction with some kinetic energy, and metallic bonding force will be very low. So atoms cannot remain present which get together. All atoms will individually traveling. There are no two atoms simultaneously found in liquid metal. So here many gap and all atoms are traveling individual. We have this consider why to understanding the foundry process also. Suppose we have melted metal, heated up to temperature T, and that metal is poured into this container. Liquid metal poured into this container, that is known as ladle. Here metal is in liquid. Suppose we have iron based material, then it will be reddish yellowish red color,
will be available. So this is liquid state and provided in container, and container have heat resistance, means not transferring heat to any direction, so it is remain in liquid state. Then we will solidify. So how solidification takes place can be understand. हमने हीटिंग कर दिया, मेटल को रूम टेम्परेचर पर लिया, कोई भी सैंपल एक मेटल का लिया, उनका हीटिंग किया, फिर इनका जो टेम्परेचर राइज होता है ये ऑब्जर्व किया, अप टू बी उनका टेम्परेचर राइज हुआ, एट बी इनका मेल्टिंग स्टार्ट हुआ. मेल्टिंग मीन्स लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है. बट बी टू सी टेम्परेचर विल नॉट चेंज. हियर जो मेल्टिंग होता है ये कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, और एट सी मेल्टिंग कंप्लीटेड. हियर लिक्विड पूरा मेटल लिक्विड हो जाता है. और सी टू डी हम टेम्परेचर हीट अप्लाई करेंगे तो उनका टेम्परेचर राइज होगा, लेकिन रिमेन इन लिक्विड स्टेट. बट सम टेम्परेचर अप टू विच इट कैन रिमेन इन लिक्विड स्टेट. फर्दर हीटिंग इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वेपर. So, but vapor is not required to understand in material technology, because we are just material or metals are used as solid state. So, we will heat up to liquid state and then we will solidify. कोई भी जो फेज है, 3 फेज है, लिक्विड, सॉलिड और गैसियस, उसमें एटॉमिक जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो सॉलिड में 1 एटॉम के बाद दूसरा एटॉम अरेंज होता है और एटॉमिक बॉन्डिंग शेयर होता है, बॉन्डिंग फोर्स शेयर होता है. हम हीट अप्लाई करेंगे तो ये बॉन्डिंग फोर्स वीक होगा, और फर्दर हीटिंग मतलब लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया तो ये फोर्स 0 हो जाएगा. मतलब ये दोनों सेपरेट हो जाएगा एटॉम, यहाँ स्पेस बढ़ती जाएगी. और गैसियस होगा तो इससे भी ज़्यादा गैप होती जाएगी. तो लिक्विड स्टेट में इंडिविजुअल एटॉम ट्रैवलिंग टू इन मेनी डायरेक्शन विच हैव सम काइनेटिक एनर्जी. ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन we will allow heat transfer from container. This container we have previously melted metal and poured in this ladle or container. Then we will allow heat transfer to atmosphere. That is, heat transfer takes place in all directions. And solidification start or temperature will reduce. First temperature will reduce, not solidifying during starting. This is D point we have previously left here. We have melted up to D point. Maybe suppose we have written 1400. This is hypothetical example, not exact temperature. 1400 तक हमने हीटिंग किया था और D तक छोड़ दिया था, लेकिन ये प्रीवियसली हमने जो सॉलिड मेल्टिंग कर्व जो डिजाइन किया था D तक हमने हीटिंग किया था. अब नाउ वी विल कूल इट फ्रॉम D. D से हम कूलिंग करेंगे तो उनका टेम्परेचर रिड्यूस होता जाएगा अप टू C. इनकी हीट विल बी डिस्चार्जिंग टू एटमॉस्फेयर. ये सेंसिबल कूलिंग होगा. तो यहाँ आप मेजर कर पाओगे कि टेम्परेचर विल बी रिड्यूस अप टू T1. C तक टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, लेकिन ये लिक्विड ही मेटल है, लिक्विड कंडीशन में. फर्दर कूलिंग करेंगे C to B तो क्या होगा, इट विल बी सॉलिडिफाइड एट कांस्टेंट टेम्परेचर. हियर जो हीट जो लो होगी डिस्चार्ज, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वहाँ लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग यूज हुई थी. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विल बी डिस्चार्ज. So when latent heat of fusion will discharge, latent heat of fusion discharge, then solidification start on the periphery. First, when heat loss takes place, then solidification start at that point. तो यहाँ solidification start होगा पहले बाउंड्री पर. और सॉलिडिफिकेशन कैसे स्टार्ट होगा कि पहले हमने हीट डिस्चार्ज किया, तब ये जो इंटरमोलेक्युलर जो मोमेंटम था, ये उनकी वेलोसिटी थी, कुछ डिस्टेंस था, ये वेलोसिटी रिड्यूस हुई
और एटॉम थोड़ा नियर आए, गैप थोड़ी रिड्यूस हुई ड्यूरिंग कूलिंग फ्रॉम D to C, बट मेटल इज स्टिल इन लिक्विड स्टेट, C तक तो लिक्विड में ही है, तो थोड़ी गैप तो रहेगी क्योंकि ये ज्वाइन नहीं होगा। और आफ्टर C फर्दर कूलिंग ड्यूरिंग लेटेंट रेट ऑफ फ्यूजन रिलीज it will start by some atom, the process will be start by some atom, दो एटम ज्वाइन हो गए, तो ये दो एटम ज्वाइन हुए तो उनको क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मेशन बोलते हैं। फिर उनके साथ दूसरे दो ज्वाइन हो गए तो ये क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे हीट हम रिलीज करते जाएंगे यहाँ से, तो ये एटॉम के पास नए नए एटॉम ज्वाइन होते जाएंगे और सभी डायरेक्शन में। ये इनके पास भी ज्वाइन हुए, फिर इस साइड भी ज्वाइन हुए और बैक साइड भी हो गए, हमारी फ्रंट साइड भी हो गए। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होते जाएंगे। जैसे हीट चली जाएगी वैसे वैसे ऐसा क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगा। क्रिस्टलाइजेशन मीन्स सॉलिडिफिकेशन। ये एटॉम साथ में ज्वाइन हो गया, दिस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। और ये कई जगह पर होगा, स्लो प्रोसेस है, तो नंबर ऑफ स्टार्टिंग ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आर लो। स्लो कूलिंग कर रहे हैं इक्विलिब्रियम, तो ये सपोज 5-7 जगह पर होगा, पर हम जो फास्ट कूलिंग करेंगे तो नंबर ऑफ प्लेसेस पर यह क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। Fast cooling means we will allow some cooling medium here, or heat transfer takes fast. लेकिन we are allowing here in equilibrium diagram, so number of places ये cooling है वो limited place पर होगा। तो ये crystallization start हुआ पेरिफेरी ऊपर, और at point B solidification एंडिंग टेक्स प्लेस। यहाँ सॉलिडिफिकेशन पूरा हो जाएगा, लेकिन क्रिस्टल कैसे बनेगा, C to B तक क्रिस्टल कैसे बनेगा, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये ब्रांचिंग स्टार्ट हो गई, मतलब एक कोई यहाँ से शुरुआत हुई थी और उनके साथ नंबर ऑफ एटॉम ज्वाइन होते गए, तो नंबर ऑफ ब्रांचिंग बन गई। पहले सपोज ये दो जो साथ में ज्वाइन हुए थे, उनके साथ और दो ज्वाइन हो गई एटॉम, इस साइड दो हो गए। ये तो हम फ्रंट साइड ही देख रहे हैं, 2 डायमेंशनल देख रहे हैं, अदरवाइज ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। तो ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, यहाँ भी ज्वाइन होगा आगे, और फिर यहाँ भी ऐसे ब्रांचिंग हो सकती है, ये ब्रांचिंग हुई, फिर यहाँ भी ब्रांचिंग हो सकती है। तो ऐसे ऐसे एटॉमिंग अदर एटॉम आर ट्राइंग टू अधेयर विद ओरिजिनल क्रिस्टल क्रिएटेड। जहाँ भी ऐसे दो एटॉम पहले मिले थे, तो उनके साथ अदर एटॉम ज्वाइन होते जाएंगे। तो ये जो ब्रांचिंग क्रिएट होके जब तक सॉलिडिफिकेशन बनता रहता है, और उनको डेंड्राइट कहते हैं, डेंड्राइट स्ट्रक्चर। और जब तक ये सॉलिडिफिकेशन होता रहेगा, मतलब C to B तक, तब तक ये डेंड्राइट प्रोग्रेस होता रहेगा। इनिशियली 2 एटॉम से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये जब तक सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा तब तक ये प्रोग्रेस चलता रहेगा। और ऐसा डेंड्राइट कहाँ कहाँ शुरू हुआ, तो ये हम एग्जाम्पल, ये फिगर कंसीडर कर सकते हैं कि एक तो यहाँ हुआ था, एक यहाँ हुआ था। ऐसा कितनी जगह पर हुआ, 3, 6 और 7, यहाँ 7 जगह पर ये स्टार्ट हुआ था। तो ऐसा 7 डेंड्राइट स्ट्रक्चर दिखेगा हमें। ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये मैनी नंबर, देयर आर मैनी नंबर्स, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन लिमिटेड वे। तो ऐसा जो ब्रांचिंग होती जाती है उनको एक डेंड्राइट बोलते हैं। और ऐसा नंबर ऑफ डेंड्राइट बना, ब्रांचिंग जब एंड होगा तब ये ग्रेन बनेगा। मतलब ये प्रोसेस एंड होगी जब, तब एक ग्रेन बनेगा। तो ये एग्जाम्पल है जो मैंने लिया है, ये यहाँ 3 ग्रेन बना के दिखाया। ऐसा शुरुआत हुई थी, ये ब्रांचिंग होते होते गए और ऐसी 3 ग्रेन बने।
लेकिन ये जो डेंड्राइट स्टार्ट होता है, क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होता है और डेंड्राइट होके खत्म होता है, ये शुरुआत अलग अलग जगह पर होती है। सपोज यहाँ हुई थी और यहाँ हुई थी, तो दोनों जगह सेम मैनर से नहीं होगी। एक ने लाइन इंक्लाइन बनाई ऐसे और एंगल रखा हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ 30 डिग्री, एक दूसरे ने बनाई, दूसरी जगह जो क्रिस्टलाइजेशन शुरू हुआ वहाँ लाइन बनी हॉरिजॉन्टल के साथ, लेकिन वहाँ एंगल उनसे डिफरेंट होगा, ये 40 डिग्री कुछ डिफरेंट एंगल हुआ। तो थर्ड जगह ने प्योरली हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, एटॉम ऐसे अरेंज होते गए, यहाँ ऐसे अरेंज होते गए थे, यहाँ ऐसे, तो सभी का ओरिएंटेशन अलग हुआ, सभी का ओरिएंटेशन अलग, एंगल अलग हो गया। तो ये जो ओरिएंटेशन एंगल अलग होता है और जब ये डेंड्राइट बन के खत्म होता है लास्ट में, तब इस साइड वाला डेंड्राइट जो है ये इस साइड वाले को यहाँ मिल जाते हैं, दोनों नेबर्स यहाँ मिल जाते हैं, तो यहाँ सॉलिडिफिकेशन खत्म हो जाता है। मीन्स जो हमारा डायग्राम में ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक में ये खत्म हो जाता है। तो यहाँ ओरिएंटेशन दोनों का अलग हुआ तो उनको ग्रेन बाउंड्री बोलते हैं। ये एक ग्रेन बना, ये हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन से और ये इंक्लाइन ओरिएंटेशन से दो ग्रेन बने, ये दोनों मिल गए कहाँ, ताकि यहाँ मिल गए दोनों। तो ये इमेजिनरी बाउंड्री है, नॉट रियल बाउंड्री। यहाँ कोई रियल सब्सटेंस नहीं होता है। There are no solid presence in this region. So I have drawn only green line to understand to separate these three grain in different way. और जो उनका एरिया है उनको ग्रेन साइज बोलते हैं। बड़ा है तो उनको बड़ी ग्रेन साइज बोलते हैं, और छोटा है तो छोटी ग्रेन साइज बोलते हैं, और उनको इंडिविजुअली ग्रेन बोलते हैं। तो कैसे ग्रेन क्रिएट हुआ, ताकि पहले दो एटम मिले, उनके साथ ज्वाइन होते गए जब तक सॉलिडिफिकेशन हुआ, और ऐसा नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। ये जब खत्म हुआ तो इंडिविजुअल डेंड्राइट में ब्रांचिंग ज्वाइन होते जाते हैं सभी डायरेक्शन में, जो ब्रांचिंग होती है दैट इज नोन एज डेंड्राइट। पर जब ये सॉलिडिफिकेशन एंड होता है तो उनको ग्रेन बोलते हैं। Otherwise, it is during process. This is dendrite progress. We can say dendrite are going in progress. So, suppose in this sample, the last metal was here, some was in liquid state, center red. That was not solidified, solidification not started, but at the end of a solidification, all metal will be solidified, and जितना भी crystallization start हुआ था, वो क्रिस्टलाइजेशन अपने ग्रेन एरिया बना के सॉलिड हो गया। दिस इज ग्रेन बाउंड्री एंड दिस इज ग्रेन साइज, दिस इज ग्रेन, और ये जो ब्लैक लाइन से बताई ग्रेन बाउंड्री। ऐसे सॉलिडिफिकेशन खत्म होता है। क्रिस्टलाइजेशन दैट मीन्स सॉलिडिफिकेशन। और लेकिन जब स्टार्ट होता है तब उनको क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हुआ ऐसे बोलते हैं। जो एटॉमिक एटॉम स्टिक होते हैं या अधेरिंग होते हैं, उनको हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। दिस इज सॉलिडिफिकेशन ऑफ प्योर मेटल। Difference is there are two cooling curves. We know this very well. In last solidification, we have discussed this process. A to B cooling, state remain liquid. B to C solidification, liquid to solid converted, and C to D room temperature. That is room temperature. But this is equilibrium cooling, means heat transfer allow very slowly. दो इंस्टेंस चेंज हो गए, 1 to 2 हो गए, that will be available lot of time. But this is super cooling, means we can say non-equilibrium process. जब heating transfer are fast, heat discharge is fast, then that is known as non-equilibrium or super cooling process.
So in this, some difference is there. A to B is similar. Liquid will be cooled and metal remain in liquid state up to B. यहाँ क्या होना चाहिए, एक B पर क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होना चाहिए, जो यहाँ होता है, मतलब 2 एटॉम या 3 एटॉम मिलके सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट करे। लेकिन फास्ट कूलिंग करोगे तो ये एटॉम ज्वाइंट नहीं होंगे, दे आर ट्राइंग टू सम एडिटिव्स, जो एडिटिव प्रेजेंट हो गए उसमें अदर इम्प्यूरिटी, तो सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा। लेकिन प्योर मेटल होगा जो, तो ये एटॉम ज्वाइंट नहीं होंगे, थोड़ा लेट ज्वाइंट हो गए मतलब। तो यहाँ B to B dash टेम्परेचर विल बी फर्दर रिड्यूस बट सॉलिडिफिकेशन नॉट स्टार्ट हियर अप टू दिस पॉइंट एंड देन सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट। सो B dash to C सॉलिडिफिकेशन विल बी कंप्लीटेड। तो यहाँ से क्रिस्टलाइजेशन शुरू होगा, दोनों सेम मेटल है, यहाँ और यहाँ दोनों मेटल सेम है, लेकिन इनका स्लो कूलिंग है तो क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो गया B पॉइंट पर और टेम्परेचर सपोज T1 है, लेकिन यहाँ T2 पर क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हुआ, दैट इज T2, दिस इज T1 एंड T1 इज ग्रेटर देन T2। सो यहाँ क्रिस्टलाइजेशन लेट स्टार्ट हुआ। फर्दर आफ्टर स्टार्टिंग क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर विल राइज अप टू सम पॉइंट and then at constant temperature solidification will completed, and then after it is cooled up to room temperature at solid state. So this is difference in equilibrium cooling and supercooling. Fast cooling or supercooling occurs in casting and welding. In welding, metal will be melt at the weld point and immediately it will be solidified. So this type of supercooling occurs in welding as well as casting. हम लेडल से मोल्ड में पोर करेंगे मेटल तो immediately it will be solidified. This is solidification curve of pure metal and alloy. Pure metal means कोई एडिटिव या कोई इम्प्यूरिटी नहीं है। सेम वे हम यहाँ लेंगे टेम्परेचर और यहाँ लेंगे टाइम। Then we will allow cooling. We have maintained liquid state of metal at same temperature for all. Suppose this is temperature max. At maximum temperature we have maintained 3.8 liquid state. यहाँ pure metal को cooling करेंगे, that will be sensible cooling up to Q, remain in liquid state, and at Q to R it will be solidify as usual, and then R2S room temperature. Here solid, here solidification, liquid to solidification going Q to R, but here pure metal, and that is known as unary cooling curve, because here only one substance is present. अकेला कोई प्योर में है, आयरन है तो आयरन अकेला ही रहेगा, that's why that is unary cooling curve or phase diagram, unary phase diagram. Here two metal mixed and melted. Here two metal melted or in liquid state, but both metal are soluble in both state. Soluble in both state. Both state or both phase, liquid as well as solid. उनको मेल्ट करोगे, लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो भी मिक्स हो जाएगा, सोल्यूबल है और सॉलिड पर भी सोल्यूबल है, ऐसा मेटल हमने सिलेक्ट किया है दो और उनको यहाँ रखा है, ये टेम्परेचर मेंटेन किया है। फिर हम उनको कूलिंग करेंगे, मीन्स हीट ट्रांसफर अलाउ करेंगे, तो दे विल कूल अप टू Q एज यूजुअल, सेम वे प्योर मेटल की तरह ये कूलिंग होगा। हीट विल बी लॉस्ट एंड रिमेन इन लिक्विड स्टेट, बट इट विल बी कूल लूजिंग हीट एंड टेम्परेचर विल बी रिड्यूस। तो Q पर आएगा तब उनका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम से, QR लाइन इज नॉट कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, हियर टेम्परेचर इज चेंजिंग Q to R. So why that is happening? Because here two metal is present. Suppose we can consider an example of copper and zinc हमने लिया है। Copper has high percentage of composition. Copper is higher amount. Suppose copper has high percentage composition
and zinc has low percentage composition. What is that indicating? Suppose 80% is copper and 20% is zinc. So this is low percentage in composition. और कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट हाई है. मेल्टिंग मीन्स जब उनका लिक्विफिकेशन स्टार्ट होता है ये टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट हाई कॉपर का, और इनका मेल्टिंग पॉइंट है लो, मेल्टिंग पॉइंट लो. ऐसा हमने एक कंपोजिशन लिया है और इनको हीट किया, लिक्विड में कन्वर्ट किया और अप टू पॉइंट पी तक उनको रखा है. यहां से हम कूलिंग स्टार्ट किया. एट Q what happened? That's why I am showing this. Higher amount material will start solidify first. यहाँ हायर अमाउंट मटेरियल कौन सा है? तो कॉपर है, और जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई है ये स्टार्ट होगा. That's why I have written both here. High composition 80% and high melting temperature. तो ये इनका सॉलिडिफिकेशन पहले स्टार्ट होगा. जितना अमाउंट ज्यादा है इतना सॉलिडिफाई पहले ये हो जाएगा. सपोज यहाँ तक कॉपर का सॉलिडिफिकेशन हो गया, फिर यहाँ से Q डैश से R तक कॉपर और जिंक दोनों सॉलिडिफाई हो जाएंगे. पहले थोड़ा कॉपर हो गया Q डैश तक, यहाँ तक ओनली कॉपर सॉलिडिफाई हुआ क्योंकि उनका मेल्टिंग टेम्परेचर हाई है तो उनका सॉलिडिफिकेशन विल बी हाई. और up to end zinc and copper both will be solidified. So here temperature is changing because of different alloying element or different melting and solidification temperature. यहाँ अकेला था तो इनका solidification remain constant. आप कहीं भी जाओ melting and solidification temperature remain same. आप कहीं भी जाओ atmospheric temperature पर 100 डिग्री पर ही water evaporate होगा, steam में convert होगा. So that's why that is the property of substance and remain constant. So copper is solidified first. And this is known as binary phase diagram. दो मेटल है तो इनको बाइनरी फेज डायग्राम बोलते हैं. ये जो हम बनाया कूलिंग का ये बाइनरी मेटल का है, बाइनरी फेज डायग्राम बनाया फॉर एट सिंगल कंपोजिशन. सपोज 80 and 20%. We can vary this composition and prepare many diagrams. We are observing in next slide. This is composition in which metals are soluble in liquid state. Soluble in liquid state. And insoluble or partially soluble in solid state. इनका मतलब क्या हुआ कि लिक्विड में हमने रखा है तो दोनों लिक्विड मिक्स है और सोल्यूबल है, लेकिन जैसे हम सॉलिडिफाई करेंगे तो दोनों अलग हो जाएंगे. लेकिन स्पेसिफिक मिक्सर है इनका, इनसोल्यूबल और पार्शियली बोल सकते हैं. तो ये जो है उनको यूटेक्टिक मिक्सर बोलते हैं. यूटेक्टिक मिक्सर का स्पेसिफिक एक बिहेवियर है. सपोज हम कॉपर और जिंक ही ले लेते हैं एग्जांपल में, तो 40% कॉपर होगा और 60% जिंक होगा. दैट इज जिंक एंड दैट इज कॉपर. ऐसा प्रोपोर्शन है तो इट विल बी सॉलिडिफाइड डायरेक्टली फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. मीन्स यू कैन you cannot find difference of changing phase. सपोज यहाँ हम देख सकते हैं कि Q से R तक constant टेम्परेचर सॉलिडिफाई हुआ, तो इन बिटवीन क्या रहेगा? यहाँ फेज रहेगा, लिक्विड भी होगा और सॉलिड भी होगा. यहाँ भी क्या होगा? लिक्विड भी होगा और सॉलिड भी होगा और पेस्टी नेचर होगा, पेस्ट टाइप, सेमी सॉलिड जिनको बोल सकते हैं हम, या सेमी लिक्विड, ऐसा फेज बिटवीन में रहेगा. लेकिन यूटेक्टिक मिक्सर इनको बोलते हैं. सपोज ये कंपोजिशन यूटेक्टिक मिक्सर है तो यहाँ लिक्विड विल बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू सॉलिड. देयर इज नो पेस्टी फेज अवेलेबल इन यूटेक्टिक पॉइंट.
So we will discuss in next lecture in detail. There are eutectic mixture, suppose other than eutectic what happening, but here we are understand cooling curves of single composition. So P to Q, as usual cooling takes place, temperature reduce and remain in liquid state. Q to R, excess of any, excess means ज़्यादा जिनका है, ये this will be solidify. Suppose यहाँ जिंक है तो जिंक will solidify. फिर up to Q dash और Q और R ये स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन प्रोपोर्शन होगा, ये सॉलिडिफाई लास्ट में होगा. तो क्या होगा कि यहाँ जो पहले सॉलिडिफिकेशन जिनका स्टार्ट हुआ ये प्योरली सॉलिडिफाई हो जाएगा, प्योर सॉलिडिफिकेशन होगा, मतलब कॉपर है या जिंक है जिनका भी कंपोजिशन ज़्यादा है ये. फिर Q dash to R both will be solidified simultaneously. So but it will not mix. The atom will be not arranged in substitutional solid solution. Here soluble, that's why we are calling it soluble, because the atomic position will be replaced by copper and zinc mutually. Suppose these are all are copper. So here zinc can take place because copper and zinc have similar atom. So this is substitutional solid solution happening in soluble metal. But suppose insoluble, then what happen? Some metal, first what happen? Q to Q dash, here copper is solidified. So this copper will be in different region. This is region of pure copper, and then both simultaneously solidify, Q dash to R. So what happen here? Copper and zinc prepare other two separate area as pure metal. So all together solidify, but they cannot disperse mutually. Means दोनों का एटम किसी की जगह नहीं ले सकता क्योंकि they are not soluble on solid state. सॉलिड स्टेट पर सॉल्यूबल होगा तो ये मिक्सर है साइमल्टेनियसली सॉलिड हो जाता, लेकिन यहाँ सॉल्यूबल नहीं है सॉलिड स्टेट पर. दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस. वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर सॉल्युबिलिटी. ये नेचुरल टेंडेंसी है कि कोई भी आपने जो सब्सटेंस लिया है, जो कॉपर जिंक में एग्जांपल बता रहा हूँ, बस ऐसा कई सारे मटेरियल है जो सॉलिड स्टेट पर सॉल्यूबल नहीं है. और सर बहुत सारे मटेरियल है ये ना तो लिक्विड पर सोल्यूबल है ना तो सॉलिड पर सोल्यूबल है, और ऐसा बहुत सारा मटेरियल है ये लिक्विड पर इनसोल्यूबल है लेकिन सॉलिड पर सोल्यूबल है. तो वी विल डिस्कस डिफरेंट कूलिंग कर्व ऑफ ऑल कैटेगरी. देयर आर 3 कैटेगरी. सो वी विल डिस्कस इन अदर लेक्चर. हियर वी आर डिस्कसिंग ओनली प्योर मेटल एंड एलॉय. So our consideration is only for first 2 curve, pure and alloy, which is soluble in both state. This is solidification curve. We have discussed why this cooling curve. This is cooling curve at uniform composition. Here we are not changing composition. Means we have considered 80-20 as an example. Here pure metal. Blue line is pure metal and this blue line is alloy with standard composition. But if we change here percentage, I have told you जिनका परसेंटेज ज़्यादा है उनका कूलिंग पहले होगा. तो सपोज यहाँ कॉपर बदल गया और जिंक आ गया और जिंक का मेल्टिंग टेम्परेचर तो लो है, तो ये कर्व फॉलो नहीं करेगा. दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन. सो वी विल वेरी परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन एंड प्रिपेयर सॉलिडिफिकेशन कर्व. So what happened here? We have changed example, copper and zinc left. Here we have considered nickel and copper. Here nickel changing 100% to 0. मतलब यहाँ nickel 100% है, 0 copper है. Then proportion is changing, and we have prepared various cooling curve of pure nickel, pure copper, and various proportion.
हाउ मेनी कूलिंग कर्व प्रिपेयर्ड? 6 cooling curve prepared, 2 pure and 4 with some mixing composition. We can draw more than this curve. Infinite number of curve we can draw. Suppose यहाँ 90 ले लिया और यहाँ 10 ले लिया, यहाँ 70 और 30 ले लिया. जितना ज़्यादा कर्व हम प्रिपेयर करेंगे इतना ये कर्व हम स्मूथ बना सकते हैं. तो यहाँ प्योर मेटल सॉलिडिफाई हुआ. सेम वे एट टी निकल इज द सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर ऑफ द और मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ निकल. कांस्टेंट टेम्परेचर सॉलिडिफाई हो गया. फिर हमने ये कंपोजिशन चेंज किया तो जिनका कंपोजिशन ज़्यादा है उनका सॉलिडिफिकेशन फर्स्ट हुआ बिकॉज निकल इज हायर अमाउंट. सो एट हाई टेम्परेचर सॉलिडिफिकेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हो गया. टेम्परेचर चेंज हुआ और आर पर सॉलिडिफाई हो गया. फिर हमने प्रोपोर्शन चेंज किया तो निकल रिड्यूस हो गया. तो ये सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर स्टार्टिंग पॉइंट भी चेंज हो गया Q2. यहाँ डिफरेंस आ गया डेल्टा T बिकॉज हियर निकल इज रिड्यूस. सो एट लोअर टेम्परेचर सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हुआ और एंड हो गया एट वेरिएबल टेम्परेचर बिकॉज यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है. R2 पर कंप्लीट हो गया. फिर हमने कंपोजिशन चेंज किया. यहाँ ज़्यादा कौन हो गया? कॉपर ज़्यादा हो गया और निकल कम हो गया. तो वेरी लो टेम्परेचर. सपोज आप कंपेयर करो यहाँ से यहाँ तक तो देयर आर लार्जर डिफरेंस, दैट इज हेवी डिफरेंस डेल्टा T. सो यहाँ एट लोअर टेम्परेचर सॉलिडिफिकेशन Q3 पर स्टार्ट हुआ और R3 पर कंप्लीट हो गया एट वेरिएबल टेम्परेचर. दिस इज इंटरमीडिएट फेज. और Q1 एंड R1 के बीच में लिक्विड और सॉलिड दोनों है, मिक्सर है या पेस्टी फेज है. लेकिन R3 पर यह सॉलिड हो जाता है और Q3 पर सॉलिड शुरुआत होती है. देन लास्ट मिक्सर इज निकल इज वेरी लो एंड कॉपर इज हाई. सो व्हाट हैपन? द कूलिंग कर्व फॉलो द प्रोपोर्शन परसेंटेज. कॉपर का ज्यादा है तो it will started at low temperature. Solidification started at low temperature. And suppose copper, pure copper is present, then copper का melting या solidification temperature as compared to nickel बहुत कम है. तो इनका pure copper का solidification same way. जब pure metal का किसी भी solidification कर्व देखोगे तो ये यहाँ solidification होगा Q पर और R पर खत्म होगा. ये भी Q पर स्टार्ट हुआ और R पर खत्म हो गया. फिर हमने ये कंपोजिशन लिया वेरियस, और भी हम ले सकते हैं और ऐसे कूलिंग कर्व बना सकते हैं. फिर इनको ज्वाइन कर देंगे. ये तो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, कहां से भी आप ले लो और ऐसे ज्वाइन कर दो. और ये यहां से ज्वाइन कर दो क्योंकि यहां सॉलिडिफिकेशन हो गया था. तो ये सॉलिडिफिकेशन लाइन है, ये लिक्विफिकेशन लाइन है. मतलब यहां से ऊपर जाओगे तो मेटल होगी लिक्विड में. दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज लिक्विडस लाइन. हायर टेम्परेचर पर जाओगे तो लिक्विड होगा और ये लाइन से नीचे आओगे तो यहाँ सॉलिड होगा. दैट्स व्हाई दैट इज सॉलिडस लाइन. इन बिटवीन क्या होगा? ताकि यहाँ लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों होगा. तो हमारे जो काम का डायग्राम है ये डैश लाइन से मैंने जो बनाया इतना ही हमारा काम का है. हम किसी भी दो मेटल ले लेते हैं और उनका अलग अलग प्रोपोर्शन पर पहले कूलिंग कर्व बना लेते हैं. स्लोली कूलिंग का अलाउ करेंगे और ऐसे कूलिंग कर्व बना लेंगे. यहाँ मैंने 6 कूलिंग कर्व लिए. तो ये फेज डायग्राम और सॉलिडिफिकेशन कर्व बन गया ऐसा. और ये मेटल कौन सी ली थी? सोल्यूबल, दोनों स्टेट पर सोल्यूबल है ऐसी मेटल ली थी मैंने. लिक्विड एज वेल एज सॉलिड स्टेट पर सोल्यूबल है. तो ऐसा ये लिक्विडस लाइन है और ये सॉलिडस लाइन. और यहाँ लिक्विड प्लस सॉलिड होगा. यहाँ टेम्परेचर होगा,
यहाँ कंपोजिशन होगा। तो यही काम का है, हम ऐसा कूलिंग कर्व बनाएंगे स्टैंडर्ड, फिर हम जब भी जरूरत होगी कि भाई हमने ये प्रोपोर्शन पर देखना है कि कब लिक्विड है, तो हम देख सकते हैं ये डायग्राम से। आप डायरेक्टली टेम्परेचर और कंपोजिशन की लाइन ड्रॉ करो, ये टेम्परेचर है और ये कंपोजिशन है, तो क्या होगा यहाँ कि लिक्विडस लाइन पर है, यहाँ लिक्विड सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा। तो ये डायरेक्टली यू कैन फाइंड द स्टेट और फेज, विच फेज इज प्रेजेंट। सपोज वी विल चेंज दिस, सपोज हमने कॉपर इस साइड मैक्सिमम रखा है, हम कॉपर यहाँ ये उनको उल्टा कर देते हैं, यहाँ निकल की जगह कॉपर कर देते हैं और यहाँ निकल कर देते हैं, तो क्या होगा, ये कर्व उल्टा हो जाएगा ऐसे। जैसे आप कंपोजिशन रखेंगे और जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा है वो हाईएस्ट लाइन पर आएगा, मतलब ये भी सही है। सपोज यहाँ 100% कॉपर है और यहाँ 100% निकल है, तो बोथ आर सेम, दिस दोनों कर्व सेम है। So that is depend on where you are changing the proportion, depends on proportion, कैसी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है उन पर ये सॉलिडिफिकेशन कर्व होगा। तो you can prepare infinite number of cooling curves and you can store it as a standard library and you can use whenever it required. We have prepared only one solidification curve of alloy which are soluble and soluble at both the state, liquid as well as solid state. Now we can understand objective of phase diagram. We have created this phase diagram. Here liquid, here solid, here liquid, solid. So this is phase diagram created. Now we can find its objective. I have listed after this diagram because before this diagram if we read this, we cannot understand properly. So this is objectives. First one, show phase of any combination of temperature and alloy composition. Alloy composition लिया है x एक्सिस पर और y एक्सिस पर टेम्परेचर, तो आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा फेज कहाँ है, लिक्विड है या सॉलिड। सो रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एलॉय। हम स्ट्रक्चर यहाँ का सैंपल देख लेते हैं तो स्ट्रक्चर भी फाइंड कर सकते हैं। हमने लिया टेम्परेचर यहाँ और यहाँ लिया कंपोजिशन कोई, तो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ है। तो ये सैंपल आप डायरेक्टली देखोगे, स्ट्रक्चर इनका देखोगे मेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप से, तो आप रिलेशन कर पाओगे कि ये कंपोजिशन पर ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये हम फेज डायग्राम से कर सकते हैं। परमिट्स टू स्टडी एंड कंट्रोल प्रोसेसेस सच एज, परमिट टू स्टडी एंड कंट्रोल प्रोसेसेस। फेज सेपरेशन, फेज कब सेपरेट होगा, मतलब इनसोल्यूबल एलॉय का सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं तो किनका सॉलिडिफिकेशन, कौन सी मटेरियल का सॉलिडिफिकेशन पहले होगा और लास्ट में कौन होगा, तो दैट इज नोन एज फेज सेपरेशन। और कब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड से, तो दैट विल बी फेज सेपरेशन प्रोसेस। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल एंड एलॉयज, प्योर मेटल सॉलिडिफाई कौन से टेम्परेचर होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है, और एलॉय का वेरिएबल टेम्परेचर पर सॉलिडिफाई होता है। ये हमने कूलिंग कर्व में देखा। तो ये प्रोसेस हम ड्यूरिंग फेज डायग्राम अंडरस्टैंड होती है। प्यूरिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल जब सॉलिडिफाई होगा तो डिपेंड्स ऑन सॉल्युबिलिटी, जो इनसॉल्युबल है तो एक टाइप का मटेरियल सॉलिडिफाई प्योरली होगा। सपोज कॉपर एंड जिंक सॉलिड सॉल्यूशन पर सॉल्युबल नहीं है तो कॉपर ही सेपरेटली प्योर सॉलिडिफाई होगा, जिंक भी प्योर सॉलिडिफाई होगा। तो ग्रोथ एंड डोपिंग सिंगल क्रिस्टल, ग्रोथ एंड डोपिंग सिंगल क्रिस्टल, जब क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होता है, कैसे होता है ये हम फेज डायग्राम से पता चलता है। जब हम सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट करते हैं तो ये कैसे ब्रांचिंग बनाता है, मतलब ऑल डायरेक्शन में बताता है या टू डायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल, या कैसे बनता है, दैट इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन ग्रोथ, स्टार्टिंग ऑफ द सॉलिडिफिकेशन ग्रोथ। एंड we can mark liquidus and solidus line
last slide we have prepared liquidus line and solidus line. That is liquidus line, dash line, and this is solidus line. So we can mark, means draw कर सकते हैं liquidus and solidus line by in phase diagram. And last one is lever arm rule. हमने solidification curve बनाया, लेकिन यहाँ बीच में लिक्विड और सॉलिड फेज प्रेजेंट है, तो ये कितना लिक्विड है और कितना सॉलिड है ये कैसे पता चलेगा? हाउ वी कैन फाइंड द प्रोपोर्शन एट पॉइंट नंबर 2 सपोज वी हैव रिक्वायर्ड. तो हमने इन ऑब्जेक्टिव वी हैव लर्न दैट वी विल सिलेक्ट सम कंपोजिशन एंड सम टेम्परेचर एंड ड्रॉ द लाइन विच विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट नंबर 2. और यहाँ पॉइंट नंबर 2 पर हमें स्ट्रक्चर भी देखना है और ये भी देखना है कि कितना लिक्विड है और सॉलिड है. तो यहाँ ये प्रोपोर्शन फाइंड करना जरूरी है. यहाँ तो पता है कि 100% लिक्विड है और यहाँ ये भी पता चल गया नीचे कि 100% सॉलिड है, लेकिन यहाँ कितना सॉलिड और लिक्विड है ये लीवर आर्म से हम फाइंड कर सकते हैं. लीवर आर्म इसलिए बोला कि जहाँ भी अपनी रिक्वायरमेंट है फेज आइडेंटिफिकेशन लिक्विड और सॉलिड की, वी विल ड्रॉ ए वन आर्म, मीन्स we will draw line, and this line, this is our requirement. So we will consider point number 2 as a fulcrum. फलक्रम किनको बोलते हैं कि जब प्लायर में कोई पिन होती है, सपोज ये दो लाइन है, ये प्लायर है और ये पिन है, हमारा जो पकड़ होता है ना, तो यहाँ स्क्रू होता है और स्क्रू के आसपास ये रोटेट होती है. ये इस साइड जाएगा तो ये इस साइड जाएगा, तो दिस इज नोन एज फलक्रम. सो जो पिवोटेड पॉइंट है वहां रोटेट होता है, उनको फलक्रम बोलते हैं. तो यहाँ हम उनको रोटेट करके सॉलिड और लिक्विड कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसलिए इनको लीवर आर्म भी बोला गया है और पॉइंट नंबर 2 को फलक्रम नाम दिया गया. बिकॉज दिस इज डिपेंड ऑन पॉइंट नंबर 2. हमने ये चेंज कर दिया, सपोज यहाँ ले लिया तो इट विल बी चेंज हियर. और रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन यहाँ है तो हमने ये चेंज कर दिया, तो ये चेंज हो जाता है. एंड दैट इज डिपेंड ऑन दिस फलक्रम पॉइंट. दैट्स व्हाई दैट इज दिस लाइन इज नोन एज लीवर आर्म लाइन, और टाई लाइन भी बोल सकते हैं, टाई लाइन और लीवर आर्म. ये लाइन जो सॉलिडस लाइन को टच होती है उनको नाम दिया O. जहां 2 नंबर है, 1 2 3 ऐसे लिखा है कि यहाँ सॉलिड लिक्विड है, यहाँ मिक्सर है लिक्विड और सॉलिड का, और यहाँ कंप्लीट सॉलिड है. इसलिए तीनों को अलग अलग बताने के लिए 1 2 3 वर्टिकल लाइन से ये कंपोजिशन सिलेक्ट करके लिया. फिर ये लाइन ड्रॉ की, दैट इज टचिंग सॉलिडस लाइन एट O एंड लिक्विडस लाइन एट P. Now we want to find how many liquid and how many solid. So in solid phase, percentage of solid phase, we will consider line which touching the liquidus line from fulcrum. Suppose here MP line touching liquidus line. So percentage solid phase is equal to MP divided by overall length of the lever arm, OP, multiplied by 100. That is indicate percentage of solid phase present in between this line, 2 lines, solidus and liquidus line. Again you want to liquid phase, percentage liquid phase, then line touching the solidus line means OP from fulcrum. OP indicating the percentage of liquidus region. Here consider reverse. Don't consider the line touching with liquid line indicating the percentage of liquidus phase. So here OM divided by OP. OM line touching the solidus line multiplied by 100%. Here 100 is percentage. 100 consider for percentage. So that will indicate percentage of the liquidus line. OM
touching the solidus line and MP touching the liquidus line, and OM total represent total phase present. So you can consider any point, any name A, B, C, and you can find the percentage of phase. Otherwise, this curve is created same way. By number of cooling curve, we can prepare this cooling curve by various cooling curve. This is similar cooling curve which was discussed in previous slide. ये cooling curve is समझ लो कि यही है, लेकिन we are here trying to find the percentage of phase present. So this is the construction of lever arm. How we can construct it? 1, 2 and 3 point is considered. 1 in liquid, 2 in two-phase mixer, and 3 in solid region. Then we have draw the isothermal line, means horizontal line OMP. M is passing from point number 2 is fulcrum. Then OM and MP are the two lever arm. M is fulcrum. M is center point, that's why that is fulcrum, and OMP is also known as tie line. We have already discussed. And interpretation we have already discussed. Amount of solid phase is MP line touching liquidus line, because here solid phase we are finding solid phase, and AP is total length of the lever arm. Same thing is applied here. Or suppose we know the total percentage or weight of the mixer. We know mixer weight, total weight, then we can find percentage weight also. Weight of the solid phase divided by weight of the liquid phase is equal to the proportionate length of the respective phase. So here we can find also weight of the directly. If total weight of the composition is known, then we can find the weight of the individual phase, solid or liquid. So this is enough for today's lecture, and other solidification curve will be discussed in next lecture. Thank you very much.